Good morning and general students. I hope you all are safe and healthy at home. I hope you all are following the rules regarding COVID-19 like SMS. So, what is the SMS? S as for soap, M for mask and S as for social distancing. I hope you all make SMS your habit. Okay, students? So let's start the topic. Today our topic is computer memory. First of all, before starting the chapter, I want to ask some questions. So students, try to answer them. Okay? Firstly, what is the title of your computer book? How many subjects do you learn in school? And the last is name your native state. So, students, do you know the answer to these questions? If all your questions are correct and all your answers are correct, then congratulations, you have a good memory. Okay, so it is all the information you have come across or learned which you can recall anytime you need to do. Your brain is your memory storage house. Do you know that your brain is memory storage house? आपका ब्रेन, आपका दिमाग मेमोरी स्टोरेज हाउस है. आप जो भी चीज़ लर्न करते हैं, जो भी चीज़ याद करते हैं, वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है. देन आप उसको जब रिकॉल करते हैं तो वो आपके मेमोरी में से आपको वो याद आ जाता है. देन आप उसका आंसर्स दे पाते हैं. सो सिमिलरली अ कंप्यूटर टू हैज़ मेमोरी. Before starting the chapter, we should know about what is a memory. So, memory, as the word implies, memory means the place when we have to store anything. This is very essential parts of human being. Just like this memory is also very important for computer system, because in computer system we have to store some data or some information, and for storing these items we need some memory or space. It means memory is a storage capacity of a computer. Computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. It means memory, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या लिखते हैं, या भी जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वो हमारी स्टोर होती है हमारी मेमोरी में. लाइक टेम्परेरी मेमोरी होती है एंड देन परमानेंटली मेमोरी. मीन्स वो टेम्परेरी भी सेव होती है, देन परमानेंट भी सेव होती है. दिस इज़ अ मेमोरी. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ computer system. So, computer memory is classified into two types. The types of memory. So, computer memory is classified two types. The first is a primary memory and the second is secondary memory. So, students, today we will learn about the primary memory. In this class, we have to learn about the primary memory. So, what is the primary memory? It is the main memory which is predefined in a computer. It is where data, instruction and information and stored while a computer function. However, the limited storage capacity, so primary memory is known as a internal memory. It means primary memory predefined memory होती है कंप्यूटर की, जो इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, जो भी हम कंप्यूटर पे फंक्शन या जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. देन प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज होती है वो एक लिमिटेड होती है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है लिमिटेड, इसलिए हम इस एंड देन प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज ये
CPU में होती है, इसलिए ये इंटरनल, क्योंकि CPU के अंदर होती है, दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरनल मेमोरी. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. द फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स RAM, and the read-only memory, it means ROM. So what is a RAM? RAM, the full form is RAM, random access memory. RAM stores the data, instruction and information temporarily. When you turn off the computer, the information and data stored in this memory is lost. When a computer starts, the operating system begins loading into RAM. It means रैम में जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन में स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होती है. इफ़ हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है देन वो इन्फॉर्मेशन या वो जो स्टोर डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है रैम से. बट जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा रैम में ही लोड होता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में ही लोडेड होता है, स्टोर्ड होता है, तो वो रैम से ही लोड होता है. any software that runs on a computer also get loaded into RAM. means जो भी सॉफ्टवेयर लोडर होते हैं कंप्यूटर में वो रैम के थ्रू ही लोडेड होते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ रैंडम एक्सेस, इसलिए इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं. फॉर CPU एक्सेस द मेमोरी इन द रैंडम मैनर, क्योंकि CPU जो उस मेमोरी की जो एक्सेस करती है वो रैंडमली मैनर में एक्सेस करती है, दैट्स वाई इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. It is also called read and write memory because information can be read from it and data can be written or stored on it. RAM is a volatile memory, which means is losses its data once the program turned off. It means हम इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम कोई भी डेटा को रीड कर सकते हैं, देन हम उसमें राइट करके उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करके, एडिटिंग करके उसको रीराइट करके हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं. देन इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो हमारा जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है. सो it is a RAM. Next we have to go to the read only memory, it means ROM. What is a ROM? ROM, it is a type of memory from which you can only read the information stored in it but cannot write on it. It means read only memory. आप read only memory के नाम से समझोगे कि read only, केवल इसे हम read कर सकते हैं, write नहीं कर सकते. इसमें जो भी stored data है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज. द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड इन इट. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हम रीड ओनली मेमोरी में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो डेटा परमानेंटली होता है, उसको हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट इवन द पावर इज टर्न ऑफ. इट मीन्स रोम में जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोड करते हैं वो पावर ऑफ होने पे, टर्न ऑफ या पावर ऑफ होने पे वो डेटा लॉस नहीं होता है. जस्ट लाइक रैम में वो डेटा लॉस्ट हो जाता था पावर ऑफ करने पे. सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रोम. द रोम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ रोम. रोम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज ई-रोम, पी-रोम. पी-रोम, द फुल फॉर्म इज अ पी-रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. द कंटेंट ऑफ द मेमोरी कैन बी मॉडिफाइड बाय अ प्रोग्रामर ओनली वंस. इट मीन्स जो कंटेंट हम पी-रोम में फीड करते हैं, जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन हम एडेड करते हैं, उसे हम ओनली एक ही बार मॉडिफाई कर सकते हैं. बट किसके थ्रू? ओनली प्रोग्रामर, जिसने वो प्रोग्राम ऑलरेडी डेवलप किया है या बनाया है, वही उसको एक बार मॉडिफाई कर सकता है. ओके, देन द सेकेंड इज अ EPROM. इट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रीराइट ऑन इट.
जो भी डेटा है उसे हम इरेज कर सकते हैं एंड देन रीराइट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नेम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ओके, देन नेक्स्ट इज EEPROM. It means electrically erasable programmable read only memory. Data can be erased or rewritten on it using an electrical charge. It means electrical charge के यूज से हम इसके जो डेटा है उसको हम इरेज करके एंड रीराइट भी कर सकते हैं. बट ये सारा प्रोसेस केवल प्रोग्रामर ही कर सकता है जिसने वो प्रोग्राम डेवलप किया है या जिसने वो प्रोग्राम बनाया है. ओनली फॉर प्रोग्रामेबल. ये जो भी चीज़ें हैं, अगर हम रीड ओनली मेमोरी में कोई भी डाटा सेव करते हैं और वो हमने बनाया है, वो हमने ऑलरेडी सेव किया है या वो प्रोग्राम हमने डेवलप किया है, तो हम उसमें EEPROM के अकॉर्डिंग हम उसमें एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं. देन इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी के अकॉर्डिंग उसमें हम इरेज करके उसको रीराइट कर सकते हैं. एंड देन वन मोर थिंग, EEPROM, इसमें हम इरेज करके उसको रीराइट कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिकल चार्जर के यूज से. ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड these memories. It means primary memory. So primary memory has two types of primary memories, firstly ROM and RAM and ROM, and ROM has also three types: PROM, EPROM and EEPROM. So thank you students and have a nice day.